Hello friends, welcome to chemistry classes by Vijay Kumar Sethi. Class 11th chemistry, we were discussing unit 12 organic chemistry, some basic principles and techniques, and in this video we will discuss about IUPAC nomenclature of branched chain alkanes. There are certain rules for the naming of branched chain alkanes. We will discuss these rules. First of all, the longest carbon chain in the molecule is identified. It is considered as the parent or root chain. For example, this compound is given. You can see in this straight chain, 9 carbon atoms are there. There is one more chain in this compound and this one. This contains only 8 carbon atoms. So we have to find out the longest carbon chain. So this is correct selection of longest chain. Okay. Now in the second step or second rule, the carbon atoms of the parent chain are numbered in such a way that the branched carbon atoms get the lowest possible numbers. जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है उसको हमें नंबरिंग करना है. नंबरिंग इस तरह से करना है कि जिस कार्बन पर ब्रांचिंग है उसको लोवेस्ट नंबर मिले. तो जरा देखिए इस एग्जांपल में. नाउ इसमें देखेंगे आप एट द सेकंड कार्बन एटम ब्रांचिंग इज देयर एंड एट this carbon atom branching is there. Now we are having the two option. We can give the numbering from left hand side or we can give the numbering from right hand side. Now just see, if we give the numbering from left hand side, that at the second position and at the sixth position branching is there. If we give the numbering from right hand side, that you can say at the fourth position and at the eighth position branching is there. Now which one is the lowest? Definitely this is 2 and 6. So this numbering is correct. Clear? The names of alkyl groups attached as a branch are then prefixed to the name of the parent alkane, and position of the substituents is indicated by the appropriate numbers. If different alkyl groups are present, then they are listed in alphabetical order. नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम alkyl groups का नाम लिखेंगे as a prefix. ठीक है. और उससे भी पहले किस कार्बन पर वो जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन लिखेंगे. ठीक है. और यदि अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा. तो आप देख सकते हैं लोकेंट्स यानी कि किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, फिर प्रीफिक्सेस उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उसके बाद रूट वर्ड यानी कि स्ट्रेट चेन में पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है वो लिखने, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स हमें लगाना है ANE. ओके. नाउ सी, in this case at the second carbon atom this methyl group is attached and at the sixth carbon atom this ethyl group is attached. यदि अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन. ध्यान रखिए इथाइल ग्रुप 6 पोजीशन पे आ रहा है जबकि मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ रहा है. तो इसका मतलब नहीं कि मिथाइल को पहले लिखना है. ठीक है. ये नंबरिंग हमने किसके आधार पे दी है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को या ब्रांच्ड कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. और जब नाम लिखेंगे तो नाम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. सो इट्स नेम इज 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन. ओके. द नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप्स बाय हाइफन्स dash and there is no break between methyl and nonane. It should be one word. This is the dash यानी कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होना चाहिए. जैसे ये फिर अल्फाबेट आया, नंबर आया, ये डैश लगा हुआ है, ये नंबर और ये अल्फाबेट आया, डैश आया, और ये पूरा एक सिंगल वर्ड होना चाहिए. 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन. If 2 or more identical substituent groups are present, then the numbers are separated by commas. The names of identical substituents are not repeated. Instead, prefixes such as di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5, hexa for 6, etc. are used. यानी कि एक जैसे यदि एक से ज्यादा ग्रुप आ रहे हैं तो उनका नाम रिपीट नहीं करना है. ठीक है. और
उनके नंबर को हमें लिखना है, किस किस नंबर पे, किस किस पोजीशन पे वो ग्रुप जुड़े हुए हैं। और एक जैसे ग्रुप यदि आते हैं 2 बार तो हमें काम में लेना डाई। फॉर 3 टाइम्स वी यूज द ट्राई, फॉर 4 टाइम्स टेट्रा एंड सो ऑन। सी दिस एग्जांपल। Now in this case, at the second position methyl group is there, and at the fourth position methyl group is there. So we will not write methyl methyl. Okay, we will write their position. That is, this is 2 4. Again these numbers are separated by comma. Okay, 2 4. Then methyl group is for 2 times. That's we use the word di. Okay, dimethyl pentane. This is one word. 2 4 dimethyl pentane. Now see one more example. This one. Give the numbering as per the rule we discussed. Now after the numbering, just see at the second position this methyl and this methyl, and at the fourth position this methyl is there. Okay, so we'll write 2 2 4 2 2 4. Okay, methyl group 3 बार आ रहा है, that's why tri 2 2 4 trimethyl pentane. Okay, now come to this one. Now in this case, at the third carbon atom, this group is attached. Can you identify what is this? This is CH3CH2. This is C2H5. That is ethyl. Okay. And at the fourth carbon atom, 2 methyl groups are there. So its name is 3-ethyl 4,4-dimethyl हेप्टेन। ध्यान दीजिए, नंबर और अल्फाबेट के बीच में आपको डैश लगाना है। यदि 2 नंबर आपके पास आ रहे हैं तो दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। क्लियर? If the 2 substituents are found in equivalent position, the lower number is giving to the one coming first in the alphabetical listing. यानी कि 2 ग्रुप एक जैसी पोजीशन पे यदि आते हैं तो उस कार्बन को हमें कम नंबर देना है जो जिसके ऊपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाला ग्रुप जुड़ा है। जैसे देखिए, इसमें नंबरिंग दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में 1 to 8, तो आप देखेंगे थर्ड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, 6 पोजीशन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ओके, तो यदि नंबरिंग आप राइट हैंड साइड से करते हैं तो देखिए क्या नंबर मिलता है ब्रांच्ड कार्बन एटम को। क्लियर? आप देखेंगे यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर एक ब्रांचिंग है और एक 6th नंबर पर ब्रांचिंग है। चाहे लेफ्ट साइड से करिए चाहे राइट साइड से करिए, सेम नंबर आ रहा है। तो अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे कि ये है इथाइल ग्रुप और ये है मिथाइल ग्रुप। तो नंबरिंग ऐसे करनी है कि उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले जिस पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट। ओके, then when we write its name, this is 3-ethyl 6-methyl octane, not 6-ethyl 3-methyl octane. Is that clear? The branched alkyl groups, about these branched alkyl groups we have discussed in the previous video. Branched alkyl groups can be named as their trivial names like isopropyl, secondary butyl, isobutyl, tertiary butyl, neopentyl, or they can also be written as a substituted substituents. When they are written as a substituted substituents, then the carbon atom of the branch that attaches to the root alkane, that is parent alkane, is numbered 1. For example, इसमें देखिए ये वाला कार्बन इस पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्बन को आपको 1 नंबर देना है और उसके बाद आप नंबरिंग करते जाइए। तो दिस इज 1 2 3। इन दिस वे यू कैन से एट द सेकंड पोजीशन अगेन 2 substituents are there. So you can write this group as a neopentyl, or you can also write this 2,2-dimethyl propyl. Okay, see one more example, this one. Now in this case, this carbon is attached with the parent chain. So this is numbered 1. 1, 2, 3, 4. Now in this case, at the second position branching is there and at the third position branching is there. So 2,3-dimethyl butyl. Okay. The name of such branched chain alkyl group is placed in parenthesis. Parenthesis means bracket, small bracket, while naming the compound. While writing the trivial names of substituents in alphabetical order, the prefixes
आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। आइसो एंड नियो यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर यदि आपको कंसिडर करना है तो आइसो और नियो को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, बट द prefixes secondary and tertiary are not considered to be the part of the fundamental name. Okay, let us see. If there is more than one chain of equal size, then that chain is to be selected which contains more number of side chains. यदि एक से ज्यादा चेन ऐसे आ रही है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं, तो हमें उस चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें साइड चेन, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा हो। ओके, आफ्टर सिलेक्शन द चेन नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्स्टिट्यूएंट। लेट अस सी दिस। Now in this case you can select, that is 1 2, this is 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Clear? Now there the one another chain is there, 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10. अब कौन सी चेन आप पेरेंट चेन के रूप में लेंगे? तो यदि आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है ये वाला और ये वाला, दो सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और यदि आप दूसरी चेन लेते हैं, यदि आप इस वाली चेन को सेलेक्ट करते हैं, दिस वन, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, अब ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट गिना जाएगा, ठीक है ना। एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो और एक हो गया ये, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा साइड चेन है, यानी कि ये वाली चेन हमें सेलेक्ट करनी है। अब इसको हमें नंबरिंग देना है, तो क्या नंबरिंग ये जो लिखी हुई है वो सही है? यदि आप नंबरिंग करते हैं, देखिए तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 6 पोजीशन पे, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है 8 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। लेकिन यदि नंबरिंग आप यहां से करते हैं इस जगह से, तो इधर देखिए आप, दिस इज 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे आ रहे हैं, अब देखेंगे थर्ड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 5 पर। नाउ कौन सी नंबरिंग सही है? लोवेस्ट पोजीशन आपको देनी है, तो उस हिसाब से ये वाली नंबरिंग सही है। अब आपको नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे तो दिस वन इज द सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इस वाले कार्बन को आपको लोएस्ट नंबर देना है, तो दिस इज 1 2 3 4। ओके, एंड दिस इज इथाइल ग्रुप, सो दिस इज इथाइल ब्यूटाइल, this is ethyl butyl, and these are the methyl which come first in the alphabetical order. This is ethyl butyl will come first in the alphabetical order, so we'll write at the 5th position. Okay, at the 5th position substituted substituent is there and its name is written in the parenthesis, so in bracket you can write 2 ethyl butyl, this is bracket close, then 3 dimethyl decane. Is that clear? Note, this is the wrong name. That is, if you write this is 5 2 2 dimethyl butyl 3 ethyl decane, this is a wrong. This one is correct. Clear? Now come to the some examples. This compound is given. You have find out the lowest chain. You can longest chain 1 2. This is 3. This is 4. This is 5. This is 6 7 8 9 and 10. Is there another chain? Okay, let us find out. इसके अलावा भी क्या कोई चेन इसमें चेन है हमारे पास? यदि आप देखते हैं तो this one is 1 2 3 4 5, this is 6, this is 7, this is 8. Okay, एक और पोजीशन इसमें बनती है आपके पास कि इस चेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2, this is 3 4, this is 5, this is 6 7 8 9। अब बताइए लॉन्गेस्ट कौन सी आ रही है? जिसमें 10 कार्बन एटम्स है, ठीक है ना, जिसको हमने इस रेड कलर से लिखा है। अब इसमें भी देखिए आप, यहां पर 4th पोजीशन पर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिस इज अगेन ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप,
क्या आप इसको पहचान सकते हैं? दिस इज द CH3, दिस इज CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ पोजीशन पर जो ये लिखा हुआ आपके पास सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, नाउ नंबरिंग तो आपने कर दी लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो कौन सा नाम पहले लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल को पहले लिखेंगे या सेकेंडरी ब्यूटाइल को पहले लिखेंगे? तो ध्यान रखिए, आइसोप्रोपाइल में आई को आपको अल्फाबेटिकल रूप में कंसिडर करना है, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल में सेकेंडरी को नहीं करना, उसमें आपको ब्यूटाइल को करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? ब्यूटाइल। तो आप क्या लिखेंगे? फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास आ रहा 5, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, एंड एट द फोर्थ पोजीशन आइसोप्रोपाइल डेकेन. This is the correct name of this compound. Okay, now see one more example. Now in this case 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या और भी कुछ चेन हो सकती है? देखिए 5 तक तो आपके पास आया, ये 6 7 8 नहीं हो सकती। इन द longest chain contains 9 carbon atoms. Okay, and in this case at the fifth position, this is fifth position, this branching is there. And what is its name? You can write as such as a neopentyl, or you can also treat as a substituted substituent. यदि आप इसको नियोपेंटाइल लिखते हैं तो आपका नाम बहुत आसान हो जाएगा, 5 नियोपेंटाइल नोनेन। क्लियर? 5 नियोपेंटाइल नोनेन। लेकिन इसको आप सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं तो इसको आपको फिर नंबरिंग देनी पड़ेगी। दिस इज 1 2 एंड 3। तो सेकंड नंबर पर फिर इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, तो दिस इज 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो देखिए नाम ये इसकी नंबरिंग हो गई, ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग हो गई। जब आप नाम लिखेंगे तो दिस इज 5, पैरेंथेसिस में लिखना है आपको इसको, दिस इज 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। Okay. Now nomenclature of cyclic compounds. A saturated monocyclic compound is named by prefixing cyclo to the corresponding straight chain alkane. If side chains are present, then the rules discussed are applied. बहुत सिंपल है। यदि आपके पास मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक एक कंपाउंड जिसमें एक ही साइकिल बना हुआ है और वो भी सेचुरेटेड है, तो आपको सिंपली साइक्लो वर्ड रूट वर्ड से पहले आपको साइक्लो वर्ड काम में लेना है। बाकी रूल वही है जो हमने डिस्कस किए। जैसे देखिए दिस इज साइक्लोपेंटेन, कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके नहीं है। नाउ इन दिस केस 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए रिंग, सो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट देखिए यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है दिस इज मिथाइल, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है देखिए 1 2 और 3 कार्बन एटम यानी कि प्रोपाइल, मिथाइल और प्रोपाइल। अब नंबरिंग कैसे देंगे? जैसे एक तो लिखी हुई है ये 1 2 3, क्या आप यहां से भी दे सकते हैं 1 2 3? यदि सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान रखना है। ये आपके पास मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? मिथाइल। तो नंबरिंग आपको यही रखनी है 1 2 3, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आपको नंबरिंग देनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसको देखिए आप, अगेन 6 कार्बन एटम्स इन अ चेन, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब नंबरिंग आपको देनी है। नंबरिंग यदि आप यहां से जैसे लिखी हुई है तो आप देखेंगे फर्स्ट कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा नंबरिंग। यदि आप पोजीशन को काउंट करते हैं तो 1 1 और एक आया आपके पास थर्ड। यदि नंबरिंग आप यहां से करते हैं 1 2 एंड 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे हैं? फर्स्ट पे 1 है और 3 पर 2 आ रहे हैं, तो लोएस्ट नंबर कौन सा होगा? डेफिनेटली दिस वन। सो ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ऑलरेडी दिस इज करेक्ट। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। थर्ड पोजीशन पर आ रहा है ये कार्बन और ये CH3, क्या हो गया? दिस इज इथाइल, और यहाँ पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा? इथाइल। सो दिस इज 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नॉट 1 ethyl 3 3 dimethyl cyclohexane. This one is the correct. Okay, more branched carbon gets lower number. Okay, thank you. Subscribe my channel to get the next video from this chapter.